change and lower water requirement, millets are true powerhouses, supporting food security and strengthening rural livelihood. Today, Sri Anna or millets stand as symbols of both our past wisdom and future potential. The Shri Anna Abhiyan has been pivotal in driving this resurgence. Through dedicated advocacy, it has championed the return of millets to our diets, bringing better nutrition to our people and promoting an agriculture system that cares for this planet. Forgotten foods like millets hold a treasure trove of nutrients that can address malnutrition, and their resilience makes them invaluable allies in our fight against climate change. This symposium, ladies and gentlemen, on Sri Anna and forgotten food is an essential step in amplifying this vision on a global scale. It brings together an inspiring mix of experts, policymakers, researchers, and innovators from around the world, each committed to building a diverse, resilient food system. Together, we are all ready to explore new perspectives and craft strategies that celebrate biodiversity and nutrition. So welcome to this incredible journey of collaboration, learning, and innovation at the International Symposium on Sri Anna and Forgotten Food. May today be a day of inspiration and impactful dialogue as we pave the way towards a sustainable and nourishing future for all. We are indeed privileged that the Honorable Chief Minister of Odisha would be here in a short while, and he's going to inaugurate the symposium. So we'll be starting this in a very short while from now. I'll of course request everybody in this hall to keep their mobile phones in silent mode before we begin the ceremony. Along with our Honorable CM Shri Mohan Charan Maji, we'll also have the presence of Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Shri K.V. Singhdeo. We'll have the presence of Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson, MSSRF. We'll have the presence of Professor Ramesh Chand, Member, Agriculture, Niti Aayog. We'll also have with us Chief Secretary, Government of Odisha, Shri Manoj Ahuja. We'll have with us the Principal Secretary, Agriculture and Farmers Empowerment Department, Government of Odisha, Dr. Arvind Kumar Padhi. And of course, we'll also have the presence of the Director of Agriculture and Fruit Production, Odisha, Shri Prem Chandra Chaudhary. So all these esteemed dignitaries will be here with us shortly, and we will be starting with this symposium. ओडिशार श्री अन्न और पारंपरिक कृषि ऐतिह्य आपण माने देखि पारथुवे तार प्रचार प्रसार पे आज आमे समस्त एठी एकत्रित हेछु एवं आपण समस्तंकर सहयोग जोगु ही एई कार्यक्रम मु भाबुची सफलतार नुआ शीर्ष रे पहुंची पारिबो तो आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी आम गहन रे आसी पहुंचबे एवं आमे कार्यक्रमर शुभ आरंभ करिबा। As you know, the symposium would continue for 2 days, and we'll expect all your presence for both the days. After the formal inaugural ceremony, there would be a ribbon cutting ceremony, and the stalls would be open for all of you. So we'll of course encourage all of you to visit them and take full advantage of this wonderfully thought of and organized symposium.
We're just starting in a very short while from now. So I request everybody, if they have not kept their mobile phones in silent mode, to do that. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। Ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Maji has just arrived. We extend a very, very warm welcome to our Honorable Chief Minister and all esteemed dignitaries joining him. Honorable Deputy Chief Minister, Government of Odisha, Shri K.V. Singhdev, Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson, MSSRF, Professor Ramesh Chand, Member, Niti Ayog, Shri Manoj Ahuja, Chief Secretary, Government of Odisha, Dr. Arvind Kumar Padhi, Principal Secretary, Agriculture and Farmers Empowerment Department, Government of Odisha, and Shri Prem Chandra Chaudhary, Director of Agriculture and Food Production, Government of Odisha. We extend a warm welcome to all our esteemed dignitaries. Well, to commence the ceremony, we invite our esteemed dignitaries from the ceremonial watering of the plant. ବୃକ୍ଷରେ ଜଳଦାନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେବ। An apt way to start this international symposium. That marks a symbol of growth, sustainability, and our commitment to nurturing forgotten foods. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇପାରିବ ଏଇଠି। We would like to thank our esteemed dignitaries for doing the honors and for this ceremonial watering of the plants. Well, ladies and gentlemen, as you know, as is the traditional practice, we would like to welcome our esteemed dignitaries on dais. May I request Principal Secretary, Agriculture and Farmers Empowerment Department, Government of Odisha, Dr. Arvind Kumar Padhi, to felicitate the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Maji, with the bouquet, memento, uttariya, and a sapling. I'll now request Director, Agriculture and Food Production, Odisha, Shri Prem Chandra Chaudhary, to felicitate Professor Shri Ramesh Chand with a bouquet, memento, uttariya, and the sapling. ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଜୋରଦାର ଟିକେ କରତାଳି ହଉ। ଆମର ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚରେ। I'll now request Principal Secretary Dr. Padhi to felicitate Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Shri K.V. Singhdev.
This is also our way of respecting all our esteemed dignitaries on dais, paying our respect to them, and extending a very warm welcome to them. I'll now request Dr. Padhi to also do the honors and felicitate the Chief Secretary, Shri Manoj Ahuja. I'll now request Director Shri Premchandra Chaudhary to felicitate Dr. Somya Swaminathan. We are truly privileged to have the presence of such esteemed dignitaries with us today for this international symposium. I'll also request Shri Prem Chaudhary to now felicitate the Principal Secretary, Dr. Arvind Padhi. Okay, all right. I'll request our Principal Secretary, Dr. Arvind Kumar Padhi, to now present the welcome address. जय जगन्नाथ मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय मान्यवर उपमुख्यमंत्री महोदय ऑनरेबल मेंबर नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद सर Dr. Somya Swaminathan, former chief scientist of the World Health Organization and presently the chairperson of MS Swaminathan Research Foundation, माननीय मुख्य शासन सचिव महोदय कृषि निर्देशक तथा उपस्थित विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी बंधुगण एवं सर्वोपरि विभिन्न जिलू आसीथिबा चासी भाई भौणी एफपीओ स्वयं सहायक गोष्ठी एवं समस्त निमंत्रित अतिथि मानकु आमे कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफरु हार्दिक अभिनंदन जनाउछु. I would also like to extend a hearty welcome to the scientists who have come from the ICAR, CGIAR, OUAT, sectoral experts, policy researchers, students, chefs, bloggers, and also representatives from the international organizations like FAO, World Food Program, MSSRF, and WHH, and others, and each one of you to this international symposium for Sri Anna, Millets and Forgotten Foods 2024. Today is 10th of November and we celebrate this Divas as Mandia Divasa or Millet Divas. Odisha समग्र भारत वर्ष रे प्रथम राज्य जे कि पुष्टि शस्य बा मांडिया किंबा कृषि ऐतिह्यर विश्वव्यापी प्रचार एवं प्रसार पई एक दिन को उत्सर्ग करिछि. We feel immensely proud that we have dedicated a day to celebrate the agro biodiversity heritage of Odisha. Beyond the International Year of Millets 2023, unlike many other states, we have not forgotten our neglected crops and thus this symposium. मान्यवर मुख्यमंत्री एवं मान्यवर उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री को आमे गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करिछु जेहेतु तांकर मार्गदर्शन पई आजिर एही अंतर्जातीय सम्मेलनीर आयोजन संभव होई पारिछि. Friends, Odisha has been a pioneer state in conservation and promotion of indigenous varieties for a long time. More than 700 farmer varieties from Odisha have been registered under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority PPVFRA. Under the Sri Anna Abhijan, Odisha became the first state not only in the country but in the entire planet to release standard operating protocols for mainstreaming land races and traditional varieties through seed systems for land races. For the first time in the country, 4 land races, namely Kundra Bati, Lakshmipur Kalia, Malyaband Mami, एवं गुप्तेश्वर भारती, these varieties were notified as varieties. आज यही सम्मेलन रे यही प्राचीन बिहन रक्षक जो माने अछंती भौणी रायमती घुरिया को मु देखि पारुची, स्कूल छात्री हर्षिता प्रियदर्शिनी अछंती, नुआपुडारू लंबोदर माझी अछंती, सुंदरगढ़ जकरियास कंदुलान अछंती, संबलपुर देवव्रत प्रधान अछंती, मंजुलता महंत अछंती, कौशल्या गौड़ अछंती, रेणुका दंसना एवं मेनी अदर सच कस्टोडियन फार्मर्स आर देयर. आपण मानकु समकु
आमे जुहार करी करी धन्यवाद जनाऊँ जे आपण माने ई बिहान के साहित्य करी वर्ष वर्ष धरी करी रखिछन. We also sincerely wish to promote forgotten foods. विस्मृत खाद्यर प्रोत्साहन द्वारा आमे कृषि ऐतिह्य सहित जोड़ी होई रहिबा पाई चाहूचु. The valorization of the neglected crops and forgotten foods requires collective actions at all levels, not only at the state level or the regional level, national level, also at the international level. We wish to promote women-led collectives and enterprises to grow and sell nutritious neglected crops and forgotten foods. During this symposium, we will take advice, views, guidance from all the stakeholders over the next 2 days. We promise to give these orphan crops their due recognition and put them on the pedestal in future food and agriculture policies. आजिठु एही महत्वपूर्ण संकल्प रे आमे आपण मानकर समस्तंकर सहयोग कामना करूछु. We not only talk, we walk the talk. मान्यवर मुख्यमंत्री, मान्यवर उपमुख्यमंत्री, मान्यवर सदस्य नीति आयोग एवं समस्त निमंत्रित मान्यगण्य अतिथि मानकु आउ थरे विभाग तरफरु आमे अभिनंदन जनाउछु. वंदे उत्कल जननी. जय हिंद. Thank you, Dr. Pari, for this inspiring welcome and setting the context of the symposium today. It's now time to delve into the journey of the Shri Anna Abhiyan and the Forgotten Food Initiative through a short video presentation highlighting the strides we have taken and the vision we uphold. May I now request for playing the video on the journey of Shri Anna Abhiyan and Forgotten Food Initiative. आम ओडिशार वैभव संपन्न ऐतिह्यपूर्ण अतीतर अंशविशेष थिला अनेक प्रकारर शस्य और खाद्य पदार्थ. समय गड़िबा सह आमे से सबको धीरे धीरे भूली जाइछु. एसबु अति पुष्टिकर एवं वर्तमान समय रे समस्त आह्वान को सामना करिबा पाई विशेष सहायक साजिबे. मान्यवर मुख्यमंत्री एही विस्मृत खाद्य पदार्थर पुनरुद्धार पाई नेइछन्ति विशेष पदक्षेप. यशस्वी प्रधानमंत्री उद्घोष ओडिशा पूर्व भारतर विकासर अग्रदूत साजिब. यहाकु पूरण करिबारे हेबो एक निर्णायक मोड़. विस्मृत खाद्य समूह तथा शस्य, डाली जातीय फसल, तैलबीज, फल और पनीपरिबा, औषधीय गुल्म एवं श्री अन्न आदि को पुणी थरे आम जीवन में सामिल करिबा पाई आम सरकार बेस तत्पर. तृणाकलिया चाष से चाष उपरे एबे लोग खाई करी दीर्घायु होउथिले, बेसी वर्ष बंचुथिले. से चाष के सरकार प्रचालना करी बहुत बढ़िया करिसंती. विस्मृत खाद्य शस्य तथा अवहेलित हो जाइथिबा खाद्य संस्कृति राज्यर कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थान मानकरे सीमित रही जाइछि. एहाकु गुरुत्व देवार मुख्य कारण एहार जलवायु परिवर्तन समस्या को समाधान करिबा शक्ति, रोग और कीटनाशक प्रतिरोधी, मरुड़ी प्रतिरोधी, बायोटिक एवं आबायोटिक चाप बजाय रखिबा, परिवेशर परिवर्तन को ग्रहण करिबार शक्ति रहिछि. एहा माटीर उर्वरता वृद्धि करिबारे सहायक होइथिबा बेले जैविक और प्राकृतिक चाष ग्रहणीयता पाई उपयुक्त अटे. केते लोक गाई गोबर दौଥିଲେ नहले भी एमती प्राकृतिक भाव में हो जाउछ. सेतले किछि रोग पोक नथिला, जहा होतला घास के होतला आ ठीक मरुड़ी को भी से संभालुथिला. हमें जुडा लुप्त हो जाउछि से दिन को हम बंचाई रखबा पाए बोली से बोब्रेल तो के करू नाथि ताको कोन से कीटनाशक प्रयोग होइने. विस्मृत खाद्यर व्यावसायिक उन्नति एवं आदृति पाई सहरांचलर होटेल मानकरे विस्मृत शस्यरु खाद्य प्रस्तुति को प्रोत्साहन, सामाजिक गणमाध्यम विभिन्न खाद्य प्रतियोगिता और प्रसार, अंगनवाड़ी, छात उद्यान मानकरे चाष पाई प्रोत्साहन प्रभृति को आपणा जाइछि. विस्मृत शस्य और खाद्य संस्कृतिर पुनरुद्धार नामक एक पायलट प्रकल्प मालकानगिरी चित्रकोंडा और नुआपड़ार सुनाबेड़ा ब्लॉक रे कार्यकारी करा जाउअछि. एहार संप्रसारण और व्यापक प्रचार प्रसार निमंते आम सरकार एक नूतन योजना विस्मृत खाद्य और विलुप्त प्राय शस्यर पुनरुद्धार एवं एहार स्थायित्व कार्यकारी करने को जाउछन. ए जो लुप्त विलुप्त खाद्य प्रोत्साहन देथिबारु आमर मुख्यमंत्री मोहन माझी को विशेष विशेष धन्यवाद. आगामी दिन में आम ओडिशा को आहुरी अधिक सुस्थ सबल करी गढ़िबा दिगरे विस्मृत शस्य और खाद्य संस्कृतिर पुनरुद्धार पदक्षेप
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। Well, following this insightful video, we now have a series of addresses by the leaders and visionaries who are shaping the future of agriculture. We are privileged to have with us Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson, MSS RF, a pediatrician and tuberculosis and HIV expert who has served as World Health Organization's Chief Scientist and ICMR Director General, currently chairs the MS Swaminathan Research Foundation, and advises India's National Tuberculosis Elimination Program. Educated in India, the UK, and the USA, she has authored over 480 publications and is a fellow of multiple science academies globally. Her work now focuses on security and food system transformation, serving on several international board and commission. We cordially invite Dr. Soumya Swaminathan to address this wonderful gathering. नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, श्री मनोज आहूजा, चीफ सेक्रेटरी, श्री रमेश चांद जी, एंड श्री अरविंद पादी एंड श्री प्रेम कुमार। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दिया। पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे मांड्या दिवस पे आए थे और वो अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि इस ओकेजन पर सब लोग एक मंच पर मिल जाते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हों या एकेडमिक्स हों यूनिवर्सिटी से, या हमारे जनजाति क्षेत्र के कृषक हों, पर्टिकुलरली महिला कृषक यहाँ पे आते हैं और 2 दिन के लिए मिलेट्स के ऊपर, मांड्या के ऊपर बातचीत होती है। बट इस साल ये बहुत अच्छी बात है कि इट इज़ नॉट ओनली मिलेट्स, सिर्फ मांड्या के ऊपर ही नहीं, परंतु ये निग्लेक्टेड और अंडर यूटिलाइज्ड फूड्स या फॉरगॉटन फूड्स जिसको कहते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और ये बहुत टाइमली और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिलेट के अलावा जो बाकी इस क्षेत्र के भूले हुए, जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, चाहे वो मिलेट्स हों या पल्सेस हों या वो फिर फल या सब्जी हों, और जो जंगल से हम लोग पुराने समय में उपलब्ध करते थे, कई तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी भरी सब्जियां, वो सब धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। परंतु हमारे जनजाति लोग जो हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह अभी भी याद हैं और अभी भी वो लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ठीक समय है इसके बारे में बात करने की। इनफैक्ट उड़ीसा में जो कल्चरल डाइवर्सिटी, क्यूलिनरी डाइवर्सिटी, खाने पीने में जो डाइवर्सिटी है, जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, दिस इज़ एक्चुअली फिनोमिनल। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगता है वो 56 भोग का, जो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ये जो 56 भोग का ट्रेडिशन है, जिससे सिर्फ लोकल, यहाँ पे लोकली जो अवेलेबल फूड्स हैं उसी का खाना श्री जगन्नाथ को दिया जाता है और भक्तों को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पीपल एक्चुअली रिमेंबर कि यहाँ के खाने पीने का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भूलते नहीं हैं। इसी तरह से जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, हमारे देश में बहुत सारे जगह में सेक्रेड ग्रोव्स हैं, इससे ये जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट करती हैं, लोकल पीपल प्रोटेक्ट करते हैं, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। Sir, India has only 2 globally important agricultural heritage sites recognized by FAO. One is in Koraput district and the other is in Kerala, in Kuttanad, for below sea level farming. So Koraput is one of only 2 important agricultural heritage sites recognized globally for its agro-biodiversity. And so we have a wonderful opportunity to build on that
to create more agricultural heritage sites in Odisha as well as in India. Sir, MSSRF has been working in Odisha for many years, since the early 90s, and we have been very fortunate to have been associated with the great Padma Shri Komla Pujari ji, as well as now with Raimati Ghuria and with many other women champions who are actually our champions of conservation. Without these women farmers, we would have lost many of the varieties of paddy, of millets, and of many other crops that we have today. Millets are important because we are facing climate change. We know that water is going to be an issue. We are going to see rising temperatures. Globally, 2023 had broken all the records, but World Meteorological Organization tells us that 2024 has broken those records also. So every year we are breaking the heat records. And if we continue like this, which is what it looks like, the latest projections show that the world is heading to a plus 3 degrees scenario, 3 degrees temperature more than the pre-industrial era. Many of our staple foods like rice and wheat will face a lot of difficulties in yield in the future. Millets can be the crop of the future because it can withstand. It has genetic properties which help it to withstand higher temperatures. It also requires less water. It can much more hardy. It requires less chemical fertilizers. And it has a lot of nutritional properties like low glycemic index. It is gluten-free, very rich in micronutrients. So when we look at nutritional profile of Indians, we are seeing both extremes now. On one extreme, we are seeing more of obesity, non-communicable diseases. On the other extreme, we still have stunting, malnutrition, and we have very high levels of anemia and micronutrient deficiencies like zinc, iron, calcium, selenium, vitamin A, etc. So we have so many of these are actually there in the millets, the different, especially the minor millets that we have. Odisha, of course, is famous for Mandya and Swan, but there are many other millet varieties in India which have very good nutritional and metabolic profile. So I think this type of conference जो आज यहाँ पर हो रहा है, श्री अन्न अभियान जो उड़ीसा ने शुरू किया था, पिछले साल तो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था, और प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो बार बार मिलेट्स के बारे में बोलते हैं और वो खुद अपने लाइफस्टाइल से दिखाते हैं कि और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है. तो मेरे ख्याल से अब हम सब जुड़ के अगर इसके ऊपर काम करेंगे, मांड्या के ऊपर भी और फॉरगॉटन फूड्स जो बाकी निगलेक्टेड और अंडर यूटिलाइज स्पीशीज़ हैं, कम्युनिटी के साथ मिलकर ऑल्टरनेटिव सीड सिस्टम्स, कम्युनिटी सीड बैंक्स और वैल्यू चेन बढ़ाना, क्योंकि जो वैल्यू फार्मर को सिर्फ धान बेचने से मिलता है, उससे अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे कई ज़्यादा उनको वैल्यू मिल सकता है. एक एग्रो बायोडाइवर्सिटी मैपिंग और रजिस्ट्रेशन करें हम उड़ीसा का, और एक नेग्लेक्टेड और अंडर यूटिलाइज स्पीशीज़ का बायो पार्क बनाएं, जिससे को डेवलपमेंट, इनोवेशन और वैल्यू चेन हर चीज़ को हम लोग बढ़ा सकते हैं. और फाइनली मैं मुख्यमंत्री जी से ये विनती करूंगी कि एक इंटरनेशनल फार्म स्कूल उड़ीसा में शुरू किया जाए, क्योंकि इतने यहाँ पे हमारे विमेन चैम्पियन फार्मर्स हैं, वो सिर्फ भारत को नहीं पर पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं कि कैसे कंजर्वेशन किया जाए. नमस्कार, जय. डॉक्टर स्वामीनाथन का हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे. उनके मार्गदर्शन हमेशा की तरह हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं मददगार रहेगा. थैंक यू सो मच मैडम. Ladies and gentlemen, we have with us on stage today Shri Manoj Ahuja, Chief Secretary, Government of Odisha, a 1990 batch IAS officer. He has held various key positions, including Union Agriculture and Farmers Welfare. Known for his expertise, I'll now request him to address this wonderful gathering. नमस्कार. मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय,
मान्यवर उप मुख्यमंत्री महोदय, मान्यवर सदस्य नीति आयोग, माननीय अध्यक्ष स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, प्रमुख शासन सचिव कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग, निर्देशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन डिपार्टमेंट, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष करी विभिन्न जिला आस्थवा चासी भाई भौनी माने, FPO सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यगण, उपस्थित अन्य अतिथिगण एवं मीडिया बंधुगण, समस्तों को मु आज ये अंतर्राज्यीय सम्मेलनी जहाँ की फॉरगॉटन फूड्स एवं श्रीयान उपरे आयोजित करा जाइए समस्तों को स्वागत करुची और कृषि विभाग को मध्य अभिनंदन जनाऊची कि से मैंने प्रति वर्ष मांडिया दिवस रा आयोजन करुचंती एवं ये सम्मेलन आज ये आयोजित कराई। आप मैंने जानी थे माननीय प्रधानमंत्री आह्वान देथिले और श्रीयान उपरे और यूनाइटेड नेशंस रे ये प्रस्ताव जो भारत देथिला सेटा ग्रहण कराइथिला एवं बास्तुरी देश समर्थन देथिले और सेतिपाई अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स जहाँ मैं कहूँ छू गत वर्ष आयोजित करा जाइथिला और एवं भारत रे भी तार पालन करा जाइथिला और एटा पूरा विश्व रे हेथिला न केवल भारत रे किंतु पूरा विश्व रे पालन हेथिला और भारत एठी लीड नहीं थिला। अपन मैंने सुनी थे बे बाजार रे भी मिलुची अन्य देश रु आसुची हमें जेमती कुनोवा हैला, चिया सीड्स ये प्रकार केतरा खाद्य आइटम सबो केते लोग खाऊचंती और बाजार रे भी उपलब्ध अच्छी तो जो मिलेट्स उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला एठा भी गोटे उद्देश्य थिला हमें भारत रु केमती हमारा जेमती मांडिया हैला अन्य सबू हमारा श्रीयान उत्पादन होची हमें केमती अंतरराष्ट्रीय मार्केट को एठी नहीं के जीवा। आज मु बहुत खुशी जेते बेले हमारा प्रमुख शासन सचिव ना नेले केते जन चासी भाई भौनी मैंने एठी उपस्थित अचंती जो मैंने बिहन संरक्षण करुचंती एटा आगु 100 वर्ष तले चास सेमती हेउथिला और आपण माने भी जानी थे कि 1960 रे भारत देश रे हमें बाहर रु आयात करुथुलु खाद्य जिते हमको दरकार थिला सेतके उत्पादन होना थिला किंतु जेते बेले हरित क्रांति किंवा ग्रीन रेवोल्यूशन हेला हम उत्पादन बढ़ेला किंतु फोकस हेला केवल गहम उपरे धान उपरे आउ ए दुई फसल रे उत्पादन बहुत बढ़िला किंतु जो एथिपाई थिला अपन को दरकार थिला ज्ञान दरकार थिला गवेषणा दरकार थिला मैंने रिसर्च दरकार थिला एटा सबू यूनिवर्सिटी द्वारा एकेडमिक संस्था द्वारा जमती ICR से संस्था द्वारा सृष्टि होतिला मैंने बाहर आसुथिला और जो चासी मैंने भी गोटे प्रकार वैज्ञानिक प्रतिवर्ष मैंने चाष करती तांका जो ज्ञान थिला तांका जो प्रक्रिया चाष करिवार प्रक्रिया सेटा सेटा टिके टिके कमिला और तांका जो आत्मविश्वास चासी मानेगा तांका जो निजर प्रक्रिया निजर बिहान उपरे जेतु एते साहजे स्टेट रु मिलला नहीं सेटा भी कमी कमी आसिला। आज ही हमें एठी अच्छू जेतु समस्त हृदंगम करुचंती कि जहाँ हमें करुचु कृषि जो केमिकल एग्रीकल्चर अच्छी और जो मोनोकल्चर है गला केवल हमारा फोकस गहम और धान उपरे रह गला हमें भी एवं दरकार अच्छी डाइवर्सिफिकेशन पाई और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड अच्छी ताकू हमें फूड बास्केट रे केमती आने फूड बास्केट रे आनले मैंने तार उत्पादन केमती होबो उत्पादन रे हमें केमती बढ़ाइबा उत्पादकता केमती बढ़ाइबा बाजार को केमती नहीं के आसीबा और ये सबू रे गोटे उड़ीसा रा उदाहरण मैंने ना केवल राष्ट्र रे किंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर रे भी गोटे प्रशंसाजनक जेहेतु एटा मैंने गोटे सफल उदाहरण अच्छी ओडिशा रे जेमती मिलेट्स मिशन चालीची और आपन मैंने जा योगदान चासी मैंने ऐसे चीरा भाई भौनी माने FPO रा जो मैंने सेठी योगदान दीचंती तांको मी बहुत अभिनंदन और धन्यवाद जनाऊची कि आपन ए प्रकार रा उदाहरण गोटे अंतरराष्ट्रीय स्तर रे गोटे तैयारी दिखाई चंती। आज ही यही जो हमारे सम्मेलन आयोजित है
हमको ये भी चिंता करिबा को पड़िबो जदि आमे या को आगे बढ़ाइबा श्रीयान को बढ़ाइबा ताले केमती करी पारिबा मैंने अपन को मार्केट रे सही जिनस तैयार करिबा को पड़िबो आउ जो हमारा ये रिसर्च होची या नॉलेज तैयारी होची जहाँ की केवल अनुष्ठानिक भाव रे मिलुची हमको केमती हमें चासी मान का जो ज्ञान अच्छी ताठू भी हमें चासी मान को भी ठू भी हमें केमती शिखिबा सौम्या स्वामीनाथन मैडम कहते गोटे इंटरनेशनल फार्म स्कूल जो चासी मैंने भी इतने वर्ष धरी के चाष करुँच भी बहुत ज्ञान अच्छी से भी जानी चाष केमती होची ताले हमें नुआ सिस्टम सेमती तैयारी करिबा पड़िबो जो हमें चासी मान थारू शिखिबा और ताको साइंटिफिक ढंग रे बाहर करिबा और तापरे तार विस्तार करिबा तो एठा मु आशा करूची कि हमारा कृषि विभाग भी गोटे पूरा देश पाई यही क्षेत्र रे गोटे उदाहरण सृष्टि करिबो आउ पूरा देश रे मैंने हमें दिखाई पारिबा केमती हमें चासी मान का जो नॉलेज अच्छी ताको साइंस से जोड़ी करिके केमती अन्य मानों को भी हमें मैंने जनाई पारिबा और से मैंने भी तार लाभ केमती नहीं पारिबे द्वितीय कथा भी आम अध्यक्ष स्वामीनाथन फाउंडेशन कही थिले जो क्लाइमेट चेंज विषय रे एटा श्री अनको हमें फ्यूचर फूड भी कहूँ कहीं कि गोटे हेला क्लाइमेट चेंज गोटे हेला न्यूट्रिशन अपन देखिए देश रे खाद्य ओबेसिटी भी बढ़ुची जेहेतु आम गोटे गोटे प्रकार खाद्य खाऊचु डाइवर्सिटी दरकार से मैंने ह्यूमन नीड भी अच्छी तापरे चासी मान भी भल कम पानी में भी है पारिबो रिस्क भी तांका कम रहिबो एथिपाई श्री अनको हमें फ्यूचर फूड कहूँ एथिपाई प्रोत्साहन भी हमको देवा को पड़िबो आउ यहाँ को चासी माने जमती जदि चाष करिवे तांका पाखे तो विकल्प रहे से मैंने एटा चाष करिवे कि अन्य फसल चाष करिवे जेते बेले पर्यंत तांको एटा इकोनॉमिकली वायबल होबनी चासी मैंने भी एटा करिवेनी सेथिपाई ये पूरा जो इकोसिस्टम दरकार जाके ओडिशा रे हेईची गोटे और सब गोटे उदाहरण दिखाई ची या उपरे आउ जोर दे के हमें केमती एटा या को आउ बढ़ाइबा या एटा हमें मिसिके हमें करी पारिबा मोर आशा आज जो सम्मेलनी हेईची निश्चय आउ भी हम पाखे गोटे आउ सुझाव हम पाइबू और या उपरे जब विभाग कृषि विभाग अच्छी से मैंने ता उपरे आउ पदक्षेप नेबे और मिसिकी जेमती आज ही हमें समझते एठी अच्छू रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंतरराष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रतिनिधि अच्छी चासी मैंने अच्छी एपीओ मेंबर अच्छी एसएचजी मेंबर अच्छी आउ समय समय रे मान्यवर मुख्यमंत्री जो निजे टाइम देइचंती मान्यवर उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित अच्छी से माने का मार्गदर्शन रे और दिग्दर्शन से मोर पूरा विश्वास अच्छी कि ओडिशा यही क्षेत्र रे आउ भी आगे गोटे प्रगति करिबो चासी मान को पाई भी एठा भला होबो और पूरा देश पाई भी एठा गोटे उदाहरण होबो धन्यवाद आपनकर अभिभाषण पे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त आहूजा. We are privileged to have with us Professor Ramesh Chand, member Niti Aayog, a distinguished agriculture economist and policy maker. As a member of Niti Aayog, he steers India's agriculture development agenda, focusing on food and nutrition security. He has authored 7 books and over 150 research papers, contributing significantly to agricultural growth and development. He has also served as a consultant for international organizations like FAO, UNDP, and World Bank. His expertise and leadership are instrumental in shaping sustainable agricultural policies and doubling farmers' income in India. Could we now request Professor Ramesh Chand to address this gathering? उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उड़ीसा के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा जी, सुश्री सौम्या स्वामीनाथन जी, अरविंद पादी जी, डॉक्टर प्रेमचंद्र जी, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, साइंटिस्ट, एफपीओस और आज के इस सिंपोजियम में भाग ले रहे सभी अतिथिगण, मैं सर्वप्रथम उड़ीसा के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे एक पहल की
और पिछले साल भी उन्होंने एक बहुत अच्छी गोष्ठी की और इस बार दूसरी बार वो मिलेट और जो हमारे फूड जिनको हम लगभग भूलते जा रहे हैं उनको रिवाइव करने के उद्देश्य से ये दूसरी बार इतना बड़ा सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है। हम सब जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो फूड सिस्टम थे वो दुनिया भर में विशेषकर डेवलपिंग कंट्री में उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके अपने फ़ायदे हुए और उसकी अपनी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुई। तो उनमें जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुई कि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड थे 60s में जैसे 70s में हमारे जो सीरियल हैं उनमें हमारा लगभग 35% प्रोडक्शन मिलेट्स का होता था और लगभग 25% डायरेक्ट कंजम्पशन जो सीरियल की थी वो मिलेट से आती थी इंडिया में। और आज वो 25 किलो से कम होके केवल 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई है और उत्पादन जो है वो लगभग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 11-12 किलो पे आ गया है 35 किलो से। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे एक डाइटरी डाइवर्सिटी बहुत प्रभावित हुई है कि यदि आप बिदन सीरियल देखो तो आप पाओगे कि उसमें जो डाइटरी डाइवर्सिटी है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैं उसमें नहीं आज जाऊंगा, समय 15 मिनट ही है मेरे पास। लेकिन सारी दुनिया उस चीज़ के जो हेल्थ पे असर हैं, पोषण पे जो असर हैं उसके बारे में चिंतित है। और सभी देशों में जो ट्रेडिशनल फूड थे, जो इस तरह की डाइट में चाहे मिलेट थे चाहे कोई पल्सेस थी, उन्हें द्वारा लाने के जो है प्रयत्न हो रहे हैं और उनको पैदा करने की जो प्रैक्टिस थी उनको भी दोबारा से बहाल करने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं अलग अलग रूप में, कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर, कहीं नेचुरल फार्मिंग के नाम पर, कहीं इकोलॉजिकल फार्मिंग के नाम पर। तो ये एक जो है हमारे जो है प्रयत्न हो रहे हैं। हम मिलेट्स को, श्री अन्न को यदि रीस्टोर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो क्या फैक्टर थे जिन्होंने जो हमारे राइस और व्हीट है उसको इतना ज़्यादा डोमिनेंस ला दिया। तो वो 3 तरह के फैक्टर थे। पहला जो राइस और व्हीट की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, उनमें ब्रेक थ्रू हुआ, जेनेटिक ब्रेक थ्रू हुआ, ऐसी वैरायटीज आई जो 2 से 3 गुना 4 गुना यील्ड देती थी, ये एक एडवांटेज हुआ उनका। दूसरा उनकी फेवर में मार्केट गई और तीसरा कल्चरल फैक्टर जो कि राइस और व्हीट को सुपीरियर सीरियल मानते थे और अन्य श्री मिलेट्स वगैरह को कोर्स ग्रेन, रफ ग्रेन की एक ऐसी मान्यता थी, प्रेफरेंस थी कंज्यूमर्स की। तो यदि हम आज देखें कि यदि हमें इन्हें रीस्टोर करना है तो जो 3 में से 2 फैक्टर हैं, पहला है मार्केट। पिछले 10 साल में मिलेट्स के बारे में इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मिलेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा देश में मैसेज दिए। तो आप पाओगे कि जो रिलेटिव प्राइसेस थी मिलेट्स की वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई और आगे भी ऐसे संकेत हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर प्राइसेस उनकी बनी रहेंगी। दूसरा था जो कल्चरल वॉइस, वो भी काफ़ी हद तक डिसमेंटल हुआ है। आज लोग मिलेट को प्रेफर करते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहें। तो हर जगह खास करके मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, उनमें एक ये कॉन्शियसनेस आई है कि हमें कुछ मात्रा में ये जो अन्न है ये भी खाने चाहिए। तो जो 2 फैक्टर जो मिलेट्स या ट्रेडिशनल फूड के अगेंस्ट गए थे अब वो फेवरेबल हो रहे हैं। तीसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी का। वो हमारे 10 साल से इस ओर प्रयत्न के बावजूद भी मेरा ये मानना है, मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और जब तक हमें उसमें
बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, तब तक हम मिलेट का जो स्टेटस रिस्टोर करना चाहते हैं कि हमारी डाइट का सीरियल का अभी वो 5% है, हम उसको कैसे 10% या 15-20% पर ले जाएं, तब तक वो मिलेट जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे कि वो लो इनकम की प्लेट से हाई इनकम की प्लेट की ओर जाएगा, लेकिन पर कैपिटा देश के लिए ओवरऑल अवेलेबिलिटी उसमें वृद्धि नहीं आएगी। तो हमें ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजिकल चेंज के द्वारा मिलेट की प्रोडक्टिविटी को, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, उससे 2 से 3 गुना की ग्रोथ रेट से लाएं, तभी हम प्रति व्यक्ति उसकी जो अवेलेबिलिटी है या उसकी कंजम्पशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस दिशा में मेरा ये मानना है कि उड़ीसा बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है। शुरू में जब उड़ीसा में मिलेट मिशन की बात हुई तो आज से 8 साल पहले चौधरी नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे NBCDS, तो उन्होंने एक इस पे इसी तरह का सिंपोजियम किया था और एक प्रदर्शनी लगाई थी जहाँ लोग सभी जिलों से मिलेट्स के जो उनके पास कोई है सीड उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो मुझे भी सरजीत मिश्रा जी उस समय उसके डायरेक्टर थे, मुझे उन्होंने बुलाया था। तो मैं यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी मिलेट्स की, स्पेशली माइनर मिलेट्स की मुझे देखने को मिली, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू लाने के लिए बिना बायोडाइवर्सिटी की अवेलेबिलिटी के आप ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं ला सकते। टेक्नोलॉजिकल चेंज का आधार जर्म प्लाज्म इम्प्रूवमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक बौद्धिक संपदा है, वो जो एक बेसिक मटेरियल है जिसके ऊपर हम मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, वो बेसिक मटेरियल उड़ीसा में है। अदरवाइज भी उड़ीसा में पहले भी हम जानते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से जो राइस का जर्म प्लाज्म था वो कैसे इरी ने उसको यूज़ करके अच्छी वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई। आज एग्जैक्टली उस चीज़ की आवश्यकता है कि हमें इस चीज़ पे जरूर गर्व है कि उड़ीसा के पास ये बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन यदि हम उस बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करते तो वो ऐसे है कि एक कंजूस आदमी के पास सोने के सिक्कों का घड़ा भरा हुआ है और उसने अपने मकान में उसको दबा के रखा हुआ है। यदि उसका एक सदुपयोग करना है, उससे आगे इन्वेस्ट करके बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी को हमें हार्नेस करना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ इंटरनेशनल सेंटर है, साइंटिस्ट आए हुए हैं, इक्रीसेट भी इसमें प्रयत्नशील है, तारा जी आई हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की डायरेक्टर, वो भी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मिलेट के लिए जो हमारे अपने संस्थान हैं उन्हीं को उसमें ब्रेक थ्रू लाना पड़ेगा। राइस, बीट, बाकी चीज़ों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें ब्रेक थ्रू लाई, लेकिन मिलेट इंटरनेशनली USA के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई इम्पोर्टेंट कमोडिटी नहीं है। बीट इम्पोर्टेंट थी तो इसलिए उन्होंने उस पर वर्क किया, मेज इम्पोर्टेंट थी उस पर उन्होंने वर्क किया, लेकिन मिलेट 40-50% इंडिया में होता है, बाकी अफ्रीका में होता है। तो मिलेट को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी इंस्टीट्यूशन की है। हम जब तक इसमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं लाएंगे, इसकी प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज करेंगे, मेरी ये कन्विक्शन है कि तब तक हम मिलेट में इनकम तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स की पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं इंक्रीज कर सकते। तो उस पे हमें एक प्रायोरिटी देकर गंभीर प्रयत्न करके उसको करना चाहिए। वो हेल्थ के एंगल से ही नहीं, जैसे सौम्या जी ने बताया, उसको एक क्लाइमेट चेंज के एंगल से भी हमें करना है। और दूसरा, कई बार लोग बात करते हैं कि इतना मिलेट आप कैसे पैदा करोगे राइस के बराबर, इसकी तो प्रोडक्टिविटी 1/3 है, 1/4 है। तो दूसरी बात मिलेट्स में कि मिलेट का उद्देश्य ये नहीं है कि वो राइस को रिप्लेस करे या बीट को रिप्लेस करे। हमें डाइटरी डाइवर्सिटी इंक्रीज करनी है। यदि अब मिलेट का परसेंट टोटल सीरियल इंटेक में 5% है, उसे 10-20% तक ले जाने का उद्देश्य है। शायद हेल्थ के एंगल से भी एक वो
ऑप्टिमम लेवल होगा कि हम रिप्लेस नहीं करने जा रहे हैं, हम उसको कुछ मात्रा में उनको चेंज करने जा रहे हैं, ताकि विदन सीरियल जो डाइवर्सिटी इतनी कम हुई है डाइट में, हम दोबारा से उस डाइवर्सिटी को लेकर आएं। और वो संभव है यदि हम उड़ीसा ने जो ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमारे पास वो एक वेल्थ है। अब ये कॉल है पूरे देश के लिए कि इस वेल्थ को आप यूज करके इसको हार्नेस करिए, इसके ऊपर आगे काम करके अच्छी अच्छी वैरायटी बनाएं। मैं अगले 4-5 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानार्थ उड़ीसा की एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट, चाहे वो सेमिनार का विषय नहीं है, लेकिन इनसे मिलने के लिए हमें रोज रोज समय नहीं मिलता, तो मैं इनके ध्यानार्थ लाना चाहूँगा कि उड़ीसा के एग्रीकल्चर में किस तरह की चेंज अब होना शुरू हो गई है और आगे हमें उस चेंज को और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए 2-4 मुख्य रूप से क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो मान्यवर, आज से 10 वर्ष पहले जो उड़ीसा की क्रॉप सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थी और इंडिया की जो एवरेज थी, उसमें 25% का अंतर था। उड़ीसा की प्रोडक्टिविटी 25% कम थी इंडिया की प्रोडक्टिविटी से। यदि पिछले साल के मैं आंकड़े देखता हूं तो वो अंतर कम हुआ है, 25% से 20% पे पहुंच गए हैं। लेकिन यदि हम इसी गति से इस अंतर को कम करते रहे तो इस अंतर को खत्म करने के लिए हमें 40 साल लग जाएंगे। तो इतनी देर प्रदेश या किसान या कोई भी सिस्टम इंतजार नहीं कर सकता। तो हमें इसको तीव्र गति से इस गैप को फिल करने के लिए कुछ मेजर करने होंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो चेंज यहाँ शुरू हो गया है, अब उसे बढ़ावा देने के लिए उसे गति देने के प्रयत्न करने चाहिए। चेंज के 2-3 सॉलिड पॉजिटिव एविडेंस हैं कि पिछले 10 साल में क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ उड़ीसा में 4.5% हर वर्ष हुई है। इंडिया की एवरेज केवल 2% है। उड़ीसा में फिशरी का ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में लगभग सभी प्रदेशों में टॉप पे गया है, 12% हर वर्ष से प्रगति हुई है। इंडिया की एवरेज भी बहुत अच्छी है, 9% है, लेकिन उड़ीसा की उससे भी 1/3 ज्यादा है। तो ये क्षेत्र भी बहुत अच्छा कर रहा है। तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंपोनेंट है लाइव स्टॉक। यहाँ पर उड़ीसा इंडिया की ग्रोथ रेट से पीछे है। इंडिया की ग्रोथ रेट 7% है लाइव स्टॉक की और उड़ीसा की 5% है। तो ये एक ध्यान देने वाला एक है। कभी फिर समय मिला तो बात करेंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मॉडल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने यूज करके आज आंध्र प्रदेश की प्रोडक्टिविटी पंजाब से ज़्यादा है और उनका ग्रोथ रेट क्रॉप सेक्टर का पंजाब से 4 गुना है। नोट करिए, 4 गुना है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने यूज की? वो नेबरिंग स्टेट है उड़ीसा की, तो हम भी उस मॉडल को हो सके तो उसको एमुलेट करने की कोशिश करें। तो क्विकली कुछ एक ऐसा पीरियड था उड़ीसा में जब यहाँ के डेवलपमेंट इंडिकेटर एग्रीकल्चर के गिरावट की ओर गए। जैसे इरिगेशन 7-8 में 37% था, वो कम होके 17-18 में 26% पे पहुंच गया। उसके बाद फॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नए सिरे से आई और एक रिवर्सल शुरू हुआ कि वो 26% से द्वारा अब 32% से है। तो एक टारगेट बनाकर हमें उसको अगले 10 साल में 50% तक कैसे ले जाएं, उस दिशा में देखना होगा। दूसरा बहुत बड़ा सोर्स यहाँ पर जो ग्रोथ का हो सकता है वो है क्रॉप इंटेंसिटी। आंकड़ों के हिसाब से उड़ीसा में दूसरी क्रॉप केवल 17% एरिया में ली जाती है और बाकी 83% एरिया में हम केवल 4 महीने के लिए लैंड को यूज करते हैं। बाकी सारा समय 8 महीने वो खाली पड़ी रहती है। तो हमें क्रॉप इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज करें, ये एक सेकंड सोर्स है। तीसरा, मान्यवर आपके यहाँ मैंने लाइव स्टॉक की बात की कि मिल्क यील्ड जो गाय का है वो 3 किलो है, इंडिया की एवरेज 5 किलो है। बफलो उसका मिल्क यील्ड उड़ीसा में बहुत ही कम है, 1.6 किलो, इंडिया की एवरेज 6 किलो के लगभग है। तो ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट को एम्फेसिस देकर
जैसे उड़ीसा क्रॉप और लाइव स्टॉक में देश से काफ़ी आगे गया ग्रोथ रेट में, यदि हम लाइव स्टॉक में भी उस तरह का पैटर्न ले आएंगे तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ की स्पीड इंडिया की स्पीड से लगभग 2 गुना हो जाएगी, उसको यदि हम एड्रेस करेंगे। इसी तरह फ्रूट और वेजिटेबल में आपके यहाँ काफ़ी अच्छा उत्पादन है, लेकिन ग्रोथ एक विषय है जिसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और क्रॉप सेक्टर में यहाँ पर डोमिनेंस राइस की है। 80% ग्रॉस क्रॉप एरिया राइस के अंडर है। यदि हम खरीफ सीजन को देखें तो 90% एरिया अकेले राइस के अंडर है। फिर दालें आती हैं, दोनों का सम कर दें तो लगभग 88% एरिया इन 2 क्रॉप्स पे है। तो जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स में हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्योंकि मिलेट्स निश एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलेट्स हमारे ट्राइबल एरिया में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बाकी हमारा एरिया है कि यदि हम राइस में 1% इंक्रीज किसी प्रोडक्टिविटी में लाते हैं तो 80% एरिया को उसका बेनिफिट होता है। तो ये देखकर जो राइस में एक प्रोग्रेस चल रही है, मैं मनोज जी से बात कर रहा था कि उड़ीसा में हमें इरी से बात करनी चाहिए कि अपना एक रीजनल स्टेशन यहाँ सेटअप करें, ताकि यहाँ प्रोडक्टिविटी को राइस में एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है राइस यहाँ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्विकली मेरा है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंकेज बहुत इम्पॉर्टेंट है मेजर क्रॉप्स के लिए, और उड़ीसा में ट्रेड वेस्ट प्रोडक्शन के बहुत चांस है। फंक्शन से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कोरापुट कॉफ़ी की बात, चाहे वह कोरापुट कॉफ़ी हो, चाहे यहाँ का कोई मिलेट हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ वैल्यू चेन बनाकर उसको आगे आगे बढ़ाएं। वो उस तरह के मॉडल को हमें जो है अडॉप्ट करना चाहिए। और एक और विषय आपके ध्यानार्थ लाना चाहूँगा कि उड़ीसा में फैलो लैंड 1/3 है कंपेयर टू जो अरेबल लैंड है। 1/3 16 लाख हेक्टेयर एरिया फैलो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बहुत से कारण हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कई लोग लैंड उनके पास है लेकिन वो नहीं उस पर कल्टीवेट करते। क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं है, वो 1/3 एरिया है हमारा और वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। क्या कोई मॉडल लैंड लीज एक्ट बनाकर जैसे आंध्रा ने किया हम उसको आगे ले जाएं तो हमें उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि उड़ीसा के ग्रोथ एग्रीकल्चर में नॉन एग्रीकल्चर दोनों में पिकअप होने शुरू हो गए हैं। इंडिया से वो हायर है, लेकिन उड़ीसा का एस्पिरेशन इंडिया की एवरेज पे पहुंचने का नहीं होना चाहिए। वो इन एनी कैसा पहुंच जाओगे थोड़ी देर के बाद, आपका एस्पिरेशन उससे काफ़ी हाई होना चाहिए और उसकी संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी प्रबल हैं। और मैं समझता हूँ कि एबल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एबल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हम मिलेट में ही नहीं ओवरऑल एग्रीकल्चर में भी उस गोल को बहुत जल्दी हासिल कर लाएंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। जय हिंद। प्रोफेसर चांद का हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके अभिभाषण से राज्य के अन्नदाता के लिए न सिर्फ ज्ञानवर्धक बल्कि प्रेरणादायी भी रहेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, we are privileged to have the esteemed presence of Shri Kanakvardhan Singhdeo, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha. Shri Singhdeo, also Minister of Agriculture and Farmers Empowerment and Energy, has represented the Balangir constituency multiple times as a member of the Bharatiya Janata Party. A seasoned legislator, he has actively advocated for infrastructure development, especially in rural areas, focusing on healthcare, education, and road connectivity to improve lives in his constitution. I'll be an honor to now request him for his address. मंच उपरे उपस्थित लोकंकर मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन माझी जी, मंच उपरे उपस्थित ओडिशा रो शासन सचिव श्री मनोज आहूजा जी,
नीति आयोग रो सदस्य डॉक्टर रमेश चांद, कृषि विभाग रो सचिव डॉक्टर अरविंद पाड़ी, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन रो अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, मंच पर उपस्थित डायरेक्टर एग्रीकल्चर प्रेमचंद चौधरी, आजिकार फॉरगॉटन फूड श्री अन्न मिशन रो सेमिनार रे उपस्थित मंच सामना रे बसी थिवा समस्त ऑफिसर एवं FPO SHG ग्रुप एवं अफ्रीका रु आसीथिबा समस्त डेलीगेट्स को सर्वप्रथम मिली आम जो मैस्कट मंच उपरे अच्छी ता ना होची मिली शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलेट मिलिंग को तरफ रु आपण मान को समस्त इठी आज आसीथिबारु विभाग तरफ रु आपण मान को समस्त को स्वागत जनाउछि। एबे आमे डॉक्टर प्रेमचंद को आम डॉक्टर रमेश चांद को आमे सुनुथुलु। Dr. Chand, I would like to thank you for your very enlightening suggestions that you have given to us, and we will take your suggestions in the right spirit as well as what Dr. Swaminathan has suggested. We will take them in the right spirit and try to incorporate them in the state of Odisha. What is millet? We must, the need of the hour is to understand it is the forgotten foods. The forgotten foods जोटा आमर आदिवासी अंचल रे बसवास करुथुबा लोक जार उत्पादन करुथले खाली उत्पादन करू नथिले से माने आजी भी ताकू खाउछन, बट आमे माने टिके रिफाइंड हे जाइछु। रिफाइंड को प्रकार है जाइछु, आमे हेल्दी फूड खाउनु, हाइजीनिक फूड खाउनु, आमे फ्रेश फूड खाउनु, ताजा किछि आमे खाउनु जहा फ्रिज रे आनी करी रखिबा ताको आमे रांदी करी रोसई करी करी खाइबा। आमे जो तेल व्यवहार करूछु आम रोसई करिबा पाई मो मने अच्छी जब मु छोट थी तो घरे सबू जहाँ भी रंधा बड़ा होउथला सेटा घी रे होउथला। आउ आम फोरफादर्स से माने सबु बेले कहउथले घी रे जहाँ रोसई हेबो सेटा आम सिस्टम पाई आम देह पाई सेटा भल। बट आमे हे गलु रिफाइंड सब्जी रु आमे तेल तैयारी करलु और सेतिरे फिर सब्जी को तरकारी को आमे रांधुछु तो सुपर रिफाइंड से सुपर रिफाइंड रे आउ पोस्ट वेयर इज द विटामिन क्वालिटी लेफ्ट? we've lost all the vitamins somewhere down the line over the years. Research kari 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 हमको इतने refined करी देछन that we have forgotten what is health food, what is fresh food. Gradually, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेला परे मिलेट रो चर्चा इंटरनेशनल फोरम रे जेबे आरंभ करले एवं ताकू लोको अपनाइबा आरंभ करिछन। आमे ओडिशा रे I thank Dr. Swaminathan and her organization that the millet mission set up by you in Koraput is a model. You
while speaking, was saying that there are only 2 states which have a center. One is Odisha and Koraput, and one in Kerala. अभी डॉक्टर रमेश चांद जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या सब हमको करना है और क्या आगे ले जाना है. We are not in a competitive world. We, yes, have to meet the national average, but not at the cost of losing our own individualities and हमारे यहाँ की जो पोषण खाद्य है उसको हमको छोड़ना नहीं है. हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारे जो आदिवासी आज तक खाते आए हैं, आप उनके स्वास्थ्य को देखो. हम सब जो शहरों में रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य से कई गुना उनका स्वास्थ्य अच्छा है. We have to go back to the traditional age-old custom. मुख्यमंत्री जी मेरे से बात कर रहे थे, हम मो संग्रे आलोचना करूले. आम एरिया रे छोट जेबे आमे थिलु तो गुर्जी खाउथु. गुर्जी is a traditional thing which the whole of western Odisha and northern Odisha, or should I say the Gorjat area of Odisha, has always consumed, and it's a normal food supplement which all tribals have. We should try to promote. When the Prime Minister talks about increasing our agri income or doubling it, rice is not going to increase our agricultural income or double it. It is these alternative food which is going to increase it. More mone pade, one of the episodes of Man Ki Baat, Pradhan Mantri jabe karutle sethire गैस उज्ज्वला गैस स्कीम बाबदरे आलोचना करिला बेले से मयूरभंजर जड़े माँ को पचारे कि तुम्हें गैस उज्ज्वला स्कीम रे पाइच से कहला हाँ. ताकू पचारे कि तुम्हें खुशी कौन सब करूछ से गैस व्यवहार करी से कहला मु मैगी नूडल बनाऊची. मैगी नूडल इज नॉट something that is going to give you, it's not a healthy food. Number one, it may be a 3-minute process where you just boil the water, put the noodle into it and you eat it. You save time, yes, but it is not. Maida is not something that will give you nutrients. It will not give you vitamins. This 2-day seminar which has been organized, I am sure आपण माने जो माने समस्ते अधिकारी श्री अन्न एवं फॉरगॉटन फूड्स रो सेमिनार अटेंड करिवा पाए आछंते. आपण माने समस्ते इठू आपण को आउटलुक, आपण को चिंताधारा विचारधारा को इनलाइटन करी आउ अधिक इठू फेरी करी गला परे ताकू अंचल रे तार प्रचार प्रसार करी आउ आगू नेबा पाई आपण माने समस्ते उद्यम करिवे. मु डॉक्टर पाड़िंग को, मनोज आहूजा साहेब आमर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी एवं मान्यवर मुख्यमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन करने पाई चाहे, धन्यवाद देवा पाई चाहे कि आजिकारी सिंपोजियम, इंटरनेशनल सिंपोजियम और श्री अन्न एंड फॉरगॉटन फूड्स रे आपण माने समस्ते या को ओडिशा रे ऑर्गेनाइज करबा पाई उद्यम करिछन. एवं आई थैंक डॉक्टर रमेश चांद and as well as Dr. Soumya Swaminathan and all the international delegates who have come for this symposium for being here. And I'm sure that the 2 days
uh, discussions that are going to be made here is going to enlighten all of us. Thank you ever so much. Jai Jagannath. Thank you so much, sir, for your inspiring and informative address. Ladies and gentlemen, excitement fills the air as we get ready to roll out the scheme guideline on revival of forgotten food, neglected crop. May I now request the esteemed guests on dais to unveil the scheme guideline on revival of forgotten food, neglected crop, a monumental step forward. ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଉନ୍ମୋଚନ ଆଜି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କ କରକମଳରେ ହେଉଛି। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। Next, we proudly present the Odia version of the booklet on protection of plant variety and Farmers' Right Act 2001. I would request the esteemed guests on dais to unveil the same. ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ଓ କୃଷକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଉନ୍ମୋଚନ। A true milestone. Well done to all our contributors. Thank you. And coming up next is the compendium on comprehensive rice fallow management. I will once again request the esteemed guests on dais to unveil the same. Once again, a much needed initiative. We would like to congratulate all contributors. Thank you to all our esteemed dignitaries. We would now proceed to the awards segment of our event. I'll request Honorable Chief Minister to do the honors along with our other guests. We will now present the award for the best performing district in promoting Shri Anna and forgotten food. This award recognizes outstanding achievement in total area coverage of millets in the district, productivity of millets, establishment of custom hiring centers, promotion of millet-based enterprises, ragi procurement, and taking up innovative activities. Please join me in congratulating Shri V. Kirti Vasan, the Collector and District Magistrate, Koraput, as he joins us on stage to receive the award. आमु चाहूची टिके करताली वर्तमान जोरदार हवा दरकार हमर जते भी अवार्डीज वर्तमान मंच को आसीबे पुरस्कार ग्रहण करिया पे तांको प्रोत्साहित करिया पे जोरदार करताली हवा दरकार। Congratulations. Please now put your hands together as we invite on stage Shri Manoj Satyavan Mahajan, Collector and District Magistrate, Sundargarh, to receive the award. Thank you. Congratulations. And now, ladies and gentlemen, please join us in congratulating Ms. Parul Patwari, Collector and District Magistrate, Raigada, coming up on stage next to receive the award. So these were the best performing districts. Can we have a big round of applause, please? Congratulations. Ladies and gentlemen, we'll now present the award for the best millet farmer, Sarvasishta Pushti Sasya Chasi. This recognizes outstanding achievement of farmers in cultivating millet in large areas.
Please welcome on stage Mr. Sita Ram Karkala from Kolahandi to receive the award. Using the SMI method, he has successfully cultivated ragi along with non-ragi varieties of little millet, pearl millet, foxtail millet, and sorghum. Employing organic techniques like bijamruta, handi khata, and ghana jivamruta, he has achieved an impressive yield of 16 to 20 tillers per hill. Additionally, he has also preserved 50 kg of ragi seeds and actively supported seed preservation efforts to benefit the community. ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଳିରେ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ହେଇପାରିବ. We'll like to request Mr. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା ସାରଙ୍ଗ ସାବର from Gajapati to receive the award. He has cultivated both ragi and non-ragi varieties using the log rolling method, achieving excellent yield. ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା Mr. ଗୋଲାପ ବିସି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ. ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ସାରଙ୍ଗ ସାବର ଗଜପତିରୁ. Additionally, he has in fact played a key role in motivating millet farmers by organizing village meetings also, which has contributed in outstanding production outcome. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲାପ ବିସି from Balangir. He has cultivated ragi using the SMI method of cultivation to maximize yield, enhance crop productivity. He has followed traditional plowing techniques to control weed. He has also practiced intercropping in the ragi field with crops such as maize, green gram, and black gram. Thank you all for your contribution towards millet. We will now present the award for Best Custodian Farmers. Please welcome on stage Mr. Lilambar Maji from Nuapada to receive the award. Bihana Sangrakhyana Chasi. He has been honored as Best Custodian Farmer for his exceptional work in conserving and cultivating neglected crops. He contributes to biodiversity preservation, improved nutrition, and the promotion of sustainable farming vital to local ecosystem. Please now welcome on stage Mr. Chakriya Kandulna from Sundargarh. He has also played a key role in revitalizing traditional crops by preserving 32 varieties of forgotten food and neglected crop species, including Nali Kolotha, Sabuja Biri, Kola Rasi, and Kudrum, among others. Sundargarhru ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରିୟା କନ୍ଦୁଲନା. ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ. ନିଜର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ it's a very, very significant moment for all of them here today. So we must applaud for their efforts. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରୁ. He has made significant contribution to the conservation of diverse neglected crop, preserving 12 unique varieties, including Sariya Dhano and Champamali. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦବା award for Best Forgotten Food Champion. First, we would like to request Srimati Kaushalya Gowda from Kalahandi to receive the award. She has developed 23 unique recipes using forgotten foods and neglected crop. A big round of applause. 23 unique recipes ye korchanti ebong she has also participated in 16 events promoting traditional and indigenous cuisine. Thank you for your contribution towards bringing forgotten food back to our daily lives. मंचको वर्तमान आसिबे श्रीमती रेणुका दंसना from Bargarh. She has created 11 unique recipes featuring millet and traditional ingredients and has actively promoted traditional food culture by participating in over 16 cultural events showcasing indigenous cuisine. वर्तमान आसिबे श्रीमती मंजुलता महंता from Mayurbhanj. She has developed 28 unique recipes using millet and traditional lesser known ingredients, has also won a block level cooking competition for her innovative recipes.
हमारो फॉरगॉटन फूड चैंपियंस पे आउ थरे टिके जोरदार करताड़ी हे जाओ. Our next category is special awardee. So please put your hands together for our special awardee, Miss Harshita Priyadarshini Mohanty from Koraput. 3 years ago, she began her journey in seed conservation, sourced paddy and millet seeds from local market and farmers across different blocks. Today maintains a food grain and seed bank at her home where she carefully stores seeds and food grains in glass bottles for preservation. Ladies and gentlemen, can we once again request a huge round of applause for all our awardees? A big congratulations to all of them. We are indeed proud of them. Congratulations, Harshita. Thank you. I would like to thank our esteemed dignitaries for doing the honors. And once again, congratulations to all our awardees. Well, ladies and gentlemen, we are truly honored to have amidst us today the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi, a seasoned politician and leader. He started his career as a sarpanch and has held various key positions in the Odisha Legislative Assembly. As a member of the Bharatiya Janata Party, he has been a strong advocate for tribal communities and public welfare. His leadership and commitment to inclusive development have been pivotal in addressing agriculture challenges and promoting food security. He has also served as the chairman of the Public Accounts Committee and a member of the Standing Committee of SC and ST. It would be my utmost honor to invite our chief guest, our Honorable Chief Minister, to deliver the inaugural address. Jai Jagannath. On the auspicious inaugural ceremony of the International Symposium on Sri Arna and Forgotten Force 2024, the dignitaries present in the dais, Honorable Deputy Chief Minister Sri Kanak Badhana Singhdauji, Honorable Member Niti Ayog, Professor Ramesh Chandji, former Chief Scientist, World Health Organization and Chairperson, MS Swaminathan Research Foundation, Dr. Soumya Swaminathan Madam, Chief Secretary Sri Manoj Ahuja, Principal Secretary Agriculture and Farmers Empowerment Dr. Arvind Padhi, Director Agriculture and Food Production Sri Prem Chand Chaudhary, ladies and gentlemen, I also welcome participants from UN agencies, scientists, researchers, experts, civil society organizations, and other participants for attending this international symposium on Sri Arna and Forgotten Foods organization by government. विभिन्न जिल्लारू आसीथिबा कृषक बंधुगण, महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य माने, कृषक उत्पादक संगठन सदस्यगण तथा देश विदेश जोग देथिबा प्रतिनिधि वृंद, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और विशेषज्ञ वृंद समस्त को मु प्रथम अंतर्जातीय श्री अन्न विस्तृति खाद्य सम्मेलन को स्वागत जनाऊँ। क्यों आदिम कालरू पृष्ठे शस्य और यार चाष प्रणाली
आम आदिवासी जनजाति संप्रदाय कृषि ऐतिह्यर एक अविच्छेद्य अंग होइकि रहिछि। पृष्टि शस्यर प्राचीनता और भारतीय संस्कृति और ऐतिह्य सहित यार निबिड़ता को दृष्टि रे रखी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेट बा ये पृष्टि शस्य को श्री अन्न नाम रे नामित करिथिबारु मो माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद जनाउछि। आम भारत वर्षर खाद्य संस्कृति और आंचलिक वैषम्यता दृष्टि यहाँ आंचलिक परिचय गुड़िक अनेक समय अलग अलग होगी अच्छी। आम राज्यर जलवायु मूर्तिका खाद्य चाहिदा को लक्ष्य कले आम हृदबोध करिपरिबा जे आम राज्यर चाषी कूल को केते यह साहाय्य प्रदान करुअछि। 10 गोटी कृषिभित्तिक जलवायु अंचल आम राज्य को अनेक प्रकार शस्य चाष करिबारे बेस सहायक हेउछि। राज्य लोकसंख्यार एक सिंहभाग आदिवासी अधुषित अंचल रे बास करती। समानंकर खाद्य एवं संस्कृति सह जड़ित एही पृष्ठशस्य मध्यरु अनेक अद्यावधि खाद्य पद्धतिर मुख्य स्रोतरे ये पर्यंत मध्य आमे ताकू शामिल कराई पारि नाहंती। पृष्ठशस्य बा श्री अन्न जातीय फसल राज्य कृषिर एक अंश विशेष। विभिन्न कारणरू आज श्री अन्न निजर प्राधान्य हरई बसी। किंतु जदि आमे शुष्क और वर्षापृष्ठ अंचल मध्य चाषी मानक वर्तमान स्थिति को जदि अनुधान देवा ताले श्री अन्न निश्चित भाव रे सेमानंक पई हा वरदान सदृश हो पारिबो। जलवायु सहिष्णुता गुण सह मांडिया एवं अन्यान्य पृष्ठशस्य गुड़िक पृष्टि और खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण बेस गुरुत्व बहन करि थाए। श्री अन्न चाष आज जेभली भाव रे यार गुरुत्व बढ़ी एवं आज सारा देश रे विशेष करिकी आज जो अविभक्त कोरापुट जिला अच्छी आई अविभक्त कोरापुट जिलू जो श्री अन्न चाष आरंभ होइछि ताहा केवल आज ओडिशा रे नुह सारा देश रे एक विप्लवर रूप नहीं आ जो कि आज सारा देश आज फोकस करिछि आम ओडिशा को एवं आमर से अविभक्त कोरापुट जिला को आ जो आज आमे से जिलार जिलापाल मान को मध्य आज आमे सम्मानित कले एवं पुरस्कृत करले। ये गोटे छोटिया कथा नुह एवं किभली भाव रे आज आम राज्य रे जलवायु को ताहार उत्तम संजोग जे आमे आम अंचल रे जोठी जो प्रकार जलवायु अच्छी आधार करी आमे से प्रकार एक कृषि भित्तिक शस्य उत्पादन करने से अंचल रे आमर जो ट्रेडिशनल चाष अच्छी ताकू आधार करी आमे आज ये काम को करूछंती एवं यह आज संप्रसारित हो वर्तमान सुधा पाखापाखि प्राय 177 ब्लॉक रे 177 ब्लॉक रे ये श्री अन्न चाष को संप्रसारण करा जाइछि एवं आज गोटे प्रकार ये मिशन आमे नहीं एवं आज ताहा लोकों पाखरे आज आदृत होबार लगी चाष काम करने से बहुत आग्रह प्रकाश करुछंती। मिलेट जातीय फसलर उत्पादन एवं व्यवहार को वृद्धि करने सह ओडिशा को किभली भाव में आगामी दिन में भारत मिलेट हब पर्यंत हो पारिबो आउ सेथिपाई एक वातावरण आज तैयारी हेबारे आरंभ होइछि एवं यह निश्चित भाव में ओडिशा श्री अन्नर विकास सहित यार प्रक्रियाकरण
एवं बिक्री बटा केमिति अधिक हेई पारिबो आउ सेथिपाई मध्य एक योजना भित्तिक भावरे यार विकास एवं प्रक्रियाकरण को गुरुत्व देकी आम सरकार चलित वर्ष नुआ सरकार आसिला परे आमे यहाँ को फोकस करिछु एवं चलित वर्ष मध्य बजेट रे आमे अधिक अर्थर व्यवस्था करिछु जहाँकि 649 कोटी टंकार बराद मध्य करा जायछि। यह निश्चित भाव रे जो माने ये मिलेट चाष करने जो आमर चाषी माने आग्रह प्रकाश करुँच निश्चित भाव रे यह बहुत सहायक हो पारिबो आउ सेथिपाई जिभଳି भाव आम किभଳି भाव चाहिदा वृद्धि पाई पारिबो एवं चाषी माने आउ अधिक आग्रह प्रकाश करिवे एवं सेथिपाई सुदृढ़ प्रणाली सृष्टि करने सह यार उत्पादन वृद्धि सहित आगामी दिन में मध्य रप्तानी किभଳି भाव में करा जाई परिबो सेथिपाई समस्त प्रकार आवश्यक व्यवस्था आम सरकार करुछन। 40% रिहाती व्यवस्था मिलेट प्रक्रियाकरण प्लांट स्थापना करिया पाई मध्य उद्योगी मानकु प्रोत्साहन देवा सहित व्यवस्था भितरे किभଳି भाव में सरकारी कैंटीन स्कूल डाक्तरखाना एवं अन्यान्य शैक्षिक संस्था को श्री अन्न जोगाई देवा एवं पुष्टिहीनतार सफल मुकाबला करिबारे आगामी दिन में निश्चित भाव में एक बहुत बड़ा गुरुत्व भूमिका ये मांडिया नापी जाऊँगी मिलेट्स नापी जाऊँगी यह आज गोटे आम गोटे शुभ सूचक अच्छी। आमे अधिकांश जानी भारत रे प्राय 14 प्रकार पुष्टि शस्य को श्री अन्न भाव मान्यता मिली आउ सेथि मध्यरु बाजरा जवार और मांडिया सबुठारु अधिक आदृत हो पारिछि आम ओडिशा रे मध्य एवं आम पुरपल्ली रे मध्य। ओडिशार मांडिया सबुठारु अधिक उत्पादन होउथबा परे मध्य आमे जहाँ को घास मंजी बोली कहूले आगरे सुआ कांगू कोदो एवं जन्ना परी अनेक पुष्टिकर शस्य आज बहुल भाव में मध्य उत्पादन होउछि एवं ताहार मध्य पुनर्बार आउ थरे प्रति परिवार रे तार खाद्य परिवेषण करिबा ई प्रकार आज देखा दउछि। एथिरे सबुठारु गोटे बड़ कथा होउछि साइंटिफिकली जहाँ वैज्ञानिक माने यहाँ को कहउछंती जे ये जो मिलेट्स रे आपंकर विशेष करके पुष्टि शस्य साधारणतः ग्लुटेन मुक्त एवं अधिक ये स्नेहसार एथिरे अछि एंटीऑक्सीडेंट एवं बहुत कम ग्लाइसेमिक सूचकांक धारक होइतबा जगु आपंकर विशेष करके मधुमेह रोग को प्रतिरोध करने सह जोटा आमर रक्त शर्करा परिचालन मध्य ये मिलेट जदि आम व्यवहार करवा ताहले अधिक आमको साहाय्य करिवो। एहा सहित मध्य ये जो मांडिया रे क्षीर ठारू मध्य 3 गुण अधिक कैल्शियम अच्छी तेणु यही आम जानीपरुवा जे मांडिया रे किभଳି भाबरे आज से आमर संपूर्ण भाव में खाद्य तंतु सब रही आपण माने समस्ते व्यवहार कला परे एवं जो अनेक समय अपपृष्टि आम पिला माने शिकार होउथबार आमे दृष्टि जेते बड़े आमे जानिबा पई पाउछंती से समय इहार आवश्यकता जदि आज आम मन पकेबा ताले निश्चित भाव में तार समाधान सूत्र आम पाखरे ही अच्छी केवल संयोजनार अभाव अच्छी। सेहीपरि कोड शस्य गहम मका अपेक्षा 3 गुण अधिक अच्छी एवं धान ठार 10 गुण अधिक खाद्य तंतु रही मिलेट्स रे एवं यह अधिक स्नेहसार युक्त खाद्य लवण तथा विटामिन सह तंतुयुक्त और ग्लुटेन मुक्त अटे। श्री अन्न गुड़िकर कर्कट रोग रक्तहीनता विटामिन खर अभाव मधुमेह जनित समस्या जहाँ इत्यादि को जो कमेवा सहित यह प्रतिषेधक तथा नियंत्रक भाव में साहाय्य करिथाए
ये सब उत्कृष्ट जो गुण अच्छी मिलेट्स रे आउ सेथिपाई श्री अन्न एक आजिर दिन रे समाज रे एक सुपर फूड रो मान्यता पाइबा पई जाउछि एवं पाई मध्य सारिछि ये सुपर फूड आउ सेथिपाई आज प्रति जोठी आपंकर सेमिनार होउछि कॉन्फ्रेंस होउछि प्रशिक्षण वर्ग होउछि मेला होउछि आज दिन रे देखिबे सबु जगार आज मिलेट्स रो खाद्य विभिन्न प्रकार प्रक्रियाकरण माध्यम रे आज सेठी प्रदर्शन करा जाउछि एवं लोक मान को मध्य सचेतन करा जाउछि जे मांडिया को पुनर्बार आउ थरे आपण माने व्यवहार करंतु चासी माने चाष काम रे पुनर्बार यहा को मुख्य शस्य उत्पादन हिसाब रे एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण मध्य यह लाभदायक हिसाब रे ग्रहण करिया पई आज व्यापक भाव रे ये बाबद रे सचेतन करा जाउ अछि। आम सरकार इतिमध्य श्री अन्नर अधिक चाष एवं उत्पादन पाई बड़ गुरुदायित्व नहीं। श्री अन्न चाषी माने केवल मांडिया चाष पाई आवश्यक सहायता पाउना सेथिपाई मध्य समाने निज फसल को सरकार को जेते बड़े समाने दौछंती एहा एमएसपी रे विक्रय मध्य करूछंती अर्थात सर्वनिम्न तार सहायक मूल्य मध्य वर्तमान धार्य करा जाउची जो थरे कि चाषी केबे ताहार क्षति आ सहिब नाही किंतु आम पाई बड़ आह्वान हेबा को जाउची किपरि भाव रे एहा लोकंकर थाड़ी रे पहुंची पारिबो। आमे जो खाद्य खाउछंती केवल भात खाउछंती आउ ता छड़ा अन्य खाद्य आम पाखक पहुंची पारु नाही आउ सेइथि पाई आज जो बड़ चैलेंज अच्छी आम पाई यह को अधिक सचेतनतार सहित जदि आम यह को प्राधान्य देवा सरकार मध्य दौरान ताले निश्चित भाव रे बड़ आह्वान को आमको सफल हेबा पई पड़िबो। जो खाद्य जेते बड़े खिया हब आम थाड़ी रे निश्चित भाव रे मिलेट्स पहुंची ये प्रकार जो दिन आम कर से दिन आम सफल नेतृत्व दे पारिबा बोली मु आशा करी। एवं आज आपण देखंतु आमे साधारण बंटन व्यवस्था जेते बड़े आमे करूछंती मिड डे मील रे अंगनवाड़ी माध्यम रे मध्य मांडिया को वर्तमान प्रदान करा जाउछि एवं निश्चित भाव रे आगामी दिन रे साधारण उपभोक्तांकर थाड़ी रे स्थान किभଳି भाव रे नहीं पारिबो सेथि पई हम समस्त को सचेतन हेबा पई पड़िबो एवं समान को प्रोत्साहन करिया पई पड़िबो। एवं आउ गोटे कथा आमे बहुत समय रे आगुरु मध्य मांडिया को आमे जेते खाउछंती बेले बेले किछि लोक कहंती यह टिके अरुचिकर लागुछि बोली अरुचिकर लागिबा कहीं हुए ना बेले बेले आमे से खाद्य प्रति आमर अनाग्रह थाए अर्थात आग्रह आसी न थाए सेति पई से खाद्य खाइले अरुचिकर मध्य बेले बेले लगे एटा टेस्टी लागु नाही एटा मीठा लागु नाही जहाँ मानवर डेप्यूटी सीएम कहते जे आमे जो खाद्य खाउछंती से खाद्यर किभଳି भाव रे समस्त प्रकार खाद्य तंत्र अभाव केते कम रहुची एवं जहाँ मांडिया खाद्य रे केते अधिक युक्त रहुची या को जदि आमे थरे आग्रह प्रकाश करी खाइबा आमर जेमती गोटे गाँव रे बा आम अंचल मानकर ढग अछि पढ़ न पढ़ रख गीता आउ रुच न रुच खाओ पिता आपण पाठ पढ़ बा न पढ़ किंतु गीता को रख ताले पुण्य अर्जन हब ठीक सही बड़ी भाव रे पिता जिनस को रुचिकर लगे नहीं सेथिपाई कुआ जाय रुच न रुच माने रुचिकर लागू न लागू किंतु खाई चलो पिता जिनस को ता द्वारा देह स्वस्थ रहिबो। ठीक सही बड़ी भाव रे जदि मिलेट प्राधान्य आज आमे दउछंती बेले बेले सेथिपाई खाद्य को आमे भल टेस्टी लागू नाही बोली आमे कहि थाउ किंतु आजिकाली आपंकर मांडिया को सुस्वादिष्ट करिया पाई मध्य नुआ नुआ प्रकारर व्यंजन नुआ प्रकारर रंधना शैली को मध्य घरे घरे पहुँचाइबा पाई पड़िबो आउ सेथिपाई मध्य तार सिस्टम रे केमती रुसई करा जाई परिबो आमे ताको निश्चित भाव रे
टिकिए प्राधान्य देले ताहा मध्य होई पारिबो। एठी मु देखुतली जो आम टेबुल रे भी हमको किछि किछि मांडियार मिलेट्स रो भी किछि ड्राई फ्रूट हमको दिया जाइछि। खाऊली आपण मैंने देखिथे कौ प्रकार टेस्टी लगुचे कौन लगुच टेस्टी तो निश्चित भाव में लगुच कितु मु भावुली जे सेटा टिके मीठा कम हेले भल कहीं मत टिके डायबिटीज अच्छी कितु देखला खाया टिके मीठा लगिला अर्थात चीनी युक्त टिके समस्त चीनी युक्त टिके नहले रुचिकर हम ना अनाग्रह रही आमे खाइबा नहीं से निश्चित भाव में जो मैंने प्रस्तुत करिसंती जानी शुणिक टेक्निकाली करिसंती ये टिके रुचिकर हम बहुत रुचिकर लगुच भावुली जे समस्त टेबुल रे अच्छी कि बोली पठा ହେଇନି सचिव महाशय कहबी जे समस्ते केमिति टिके खाइकी या देखिए खाऊे निश्चित भाव में आपण मैंने एणु आमको से रंधना शैली को घरे घरे पहुँचेवा पड़ो आउ ये दिगरे फूड ब्लगर मानकर साहाय्य मध्य निया जाई पारे। मुझे निश्चित भाव में आगामी दिन में किभली भाव में तांको पाखरे पहुँचो केमती रोषे कले भल हो पार आमर बेसिकाली एसएचजी ग्रुपर माँ मैंने ये प्रणाली सिस्टम करूछंती किंतु टिके टेक्निकाली कौटी ना कौटी टिके आउ टिके कमी रही जाउछ। थरे मु विधायक थिला बड़े 2 वर्ष आगु मो गाँव में मांडिया चाष होइतिबार प्रोत्साहन एवं सेठी गुटे कर्मशाला होइतिला एवं एसएचजी रो हमर समस्त माँ मैंने भी सेठी विभिन्न प्रकार खाद्य स्टॉल करके आनिक देखैथिले जेहेतु गाँव में करथिले एवं सेटा बहुत छोट धरणर थिला सेथिरे भल कार्यक्रम हेबा सत्ते जो खाद्य गुड़िक थिला ताहार जो रंधना शैली टिके कमजोरी थिला भलिया मते भी लागुथिला सेते बेले एनुकरी जदि रंधना शैली न रहिबो खाइबार अनाग्रह रहिबो एनुकरी शैलीटा को हमको बदलैया पई पड़िबो जो माने फूड ब्लगर अछंती समानक सहायता नेले निश्चित भाव रही पारिबो एवं विशेष करके मांडिया प्रस्तुत जो स्नैक्स एटा बे जो मु खाउथिली ताकू अनेक समय आमर प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय से कृषि भवन रे गोटे स्टॉल कर सब रखिंट जी जीवे से प्रवेश कला मात्रे नजर पड़ो एवं से आग्रह प्रकाश कर कहीं बहुत समय आम अनाग्रह प्रकाश कर कृषि भवन को जीव से पशब और देख केमती आग्रह प्रकाश कर से जेभली भाव में सिस्टम कर आमे देखिलु खाद्य को चाखिलु खाइलु एवं तापरे मध्य गोटे पैकेट नहीं घर को गलु ये प्रकार सिस्टम से रखिंट ताहा द्वारा गोटे आग्रह प्रकाश करवा सचेतन करवा एवं सिस्टम रे समस्त को पकेवा जे आपण एठी आसी गोटे सम्मिलन को माने आपण निश्चित भाव में मिलेट्स रो तैयारी स्नैक्स हो विभिन्न खाद्य प्रणाली प्रस्तुत होता खाद्य आपको खावाई पड़ो एवं से यह किभली भाव में व्यापक भाव में करा जाई पारिबो ताकु मध्य माने गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी जहाँ करा जाउची विभाग तरफ ओडिशा रे मांडिया चाष को विशेष करके आमर महिला चाषी माने आज दिन में बेसी प्राधान्य दौथबारो यह एक आंदोलन रे परिणत हो जाइछि। मांडिया चाष महिला माने आगे आसुचंती एवं करूछंती मध्य एठी जो आमर जड़े माँ आसिक ये पुरस्कृत हेले सी बोधे कलाहांडी जिलार चंपियन होती कौशल्या ये बसी से चंपियन होती सारा ओडिशा रे ताको जोरदार कलताड़ी टिके हो कुआड़े गले ये कौटी बस छिड़ा हल माँ टे हाँ यही सियाड़े बुली पड़ टे समस्त को टे मुंडिया मारिदिव समस्त को आड़े बुली पड़ाओ टे देखु केते हसुंट से काम करुँच जहाँ पचारि मुझे उत्तर फटाफट से देदेले आज चंपियन होती आज समस्त भितर चाष कर मांडिया चाष से आम केते गर्व लगुंट आंदोलन जो परिणत कौ माने यही माँ मैंने आज जहाँ आज कर निश्चित भाव में यही महिला माने आज आम देशर विभिन्न सहर को से स्टॉल नहीं कि जाइछंती प्रदर्शन करने सम्मानित होगापाई देखापी दिल्ली मुंबई चेन्नई बांगालोर ठू आरंभ कर अहमदाबाद पर्यंत अनेक समय से जाइछंती आउ किछि माँ तो आमर विदेश को भी से जाइछंती ये छोटिया कथा नुह निश्चित भाव में ये जो आंदोलन आम कहते आज ये मांडिया को गुरुत्व दि जाउछि
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଉଛି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଚହଳ ପକାଇଥିବା 2 ଜଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ 2 ମାଣ୍ଡିଆ ମା ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେ ବୁଲିପଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବାର ସମସ୍ତେ ଟିକେ 2 ମାଣ୍ଡିଆ ମା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଆମର ଅବଦାନ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ଧରିଲେ ଇଏ ଆଜି ମିଟିଂ ବି ସାର୍ଥକତା ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବାସା ମହାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁବାସା ହାତ ଟେକ ଜୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଟିକେ ହଉ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ 72 ପ୍ରକାରର ଆମର ରାଇମତି ମା ତ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 72 ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ କିସମ ରଖିଛ ନା ଏବଂ ତା ସହିତ 30 ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ କିସମକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଜି କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସିଛ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦିଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य से जेतेबेले दायी थिले प्रधानमंत्री जेतेबेले भेटी थिले प्रधानमंत्री जेतेबेले भेटी थिले हमर सुबासा महांत को केते बड़ कथा ये आज वैप्लविक से गोटे ये मांडिया पाई आह्वान एवं वैप्लविक परिवर्तन आज करिसंती एथे निश्चित भाव रे आमे तांकु धन्यवाद देकी रही परिबा नाही। मांडिया लैंड ट्रेसेस प्रस्तुत करिबारे तांकर अवदान बहुत अधिक अछि। एनु निश्चित भाव रे 250 ग्राम रु जो सुबासा महांत मात्र 250 ग्राम मांडिया चाष आरंभ करी आज सारा ओडिशा रे चर्चित जड़े मांडिया माँ हिसाब रे आज प्रतिष्ठा लाभ करि पारिछंती एवं केवल चाष करी निजर परिवार चलेबा कथा नुह से आज संपूर्ण भाव रे आम समाज को गोटे बहुत बड़ तांकर आज अवदान रही एवं आज व्यवसाय क्षेत्र में मध्य से स्वावलंबनशील हो पारिछंती ताकू मो धन्यवाद दउछि। निश्चित भाव रे से आम पई गोटे गर्व एवं गौरव खुशीर कथा गत G20 सम्मिलनी रे G20 सम्मिलनी रे उभयंकु अर्थात आमर राईमती घिउरिया एवं सुबासा महातंकु निजे प्रधानमंत्री उभयंकु G20 सम्मिलनी रे अन्न चाषर ब्रांड आंबासाडर हवा पाई माननीय प्रधानमंत्री सेमानकु सुजोग देइथिले। ये बहुत बड़ गौरवर कथा। व्यक्तिगत भाव रे कहवा पाई चाहूची मु मध्य जने साधारण चाषी परिवार रो जने मु पुओ एवं जने आदिवासी परिवार रो पुओ जो मांडिया बा जो मिलेट्स आम आदिवासी परिवार सहित ओतप्रोत भाव रे जड़ित एमिति जने आदिवासी नथिबो जहार देहरे मिलेट्स रो खाद्यता देह भीतर को पशि नथिबो आउ सेई भितर मु जने निजे आदिवासी हिसाब रे मु भी निजे को आज गर्व मने करूची जे जाहो आज मते सुजोग मिलिला एभली एक भव्य कार्यक्रम रे उपस्थित होइबार काना आज कार्यक्रम रे मु आज रही पारि नथांती मते झारखंड को जिबार थिला मोर एक विशेष कार्यक्रम रे किंतु आज मते सुजोग मिलिला जे आज मांडिया उपरे गुरुत्व देबा मिलेट्स उपरे गुरुत्व देबा एवं ताहा सहित आज मो भलिया जने आदिवासी पुओ आज
निश्चित भाव में मुझे आपण मान सहित ये मांडियार खाइबार मजा छोट थिला बेले मो माँ ठारू नहीं माँ आमको खायापी दौले माँ कौन करुले ना जिते देखिए जे ठीक धान चाष काम सरी से समय खाद्यर बहुत अभाव हुए नुआ खाद्य प्रोडक्शन हो न थाए अर्थात धान चाष प्रोडक्शन हवा पर्यंत गोटे जो गैप पीरियड थाए से ये जो पाखापाखि 2 मास साधारणतः गरीब लोक परिवार लोक माने भारी असुविधा भोगती आउपाई सर्वप्रथमे से मका चाष करी गुड़ुदी चाष जहाँ कहते गुर्जी केविजी कहले गुर्जी पश्चिम ओडिशा रे गुर्जी आम केन्दुझर तार ना हूँ गुर्दी से आपंकर ठीक सुजी जमीती से टाइप तार मंजी अत्यंत टेस्टी एवं किछि दिन माँ खायापे दियंती भात बा चाउल भात सहित से मका मिसई देवे ना खाइबापी पड़ो कहीं मकार भी विटामिन अच्छी आवश्यक पुष्टिसार खाद्य भी अच्छी ठीक से भाई किछि दिन गला से भात सहित गुड़दी मिसई देवे गुड़दीटा भी आपंकर जाऊँगी मिलेट्स रे मुझे केविजी को कही अनुरोध करी जे गुड़दी बा गुर्जी टिके आपन टिके आनिक आमको देवे कि टिके आमे टिके खीरी करी एठी समस्ते खाते एवं तार मजा भी नियंते आगामी दिन में ताकू प्रचार प्रसार भी करते ये अनुभूति अनेक समय गाँव रे निज परिवार रे थिबा कारण एवं आज सरकार रो गोटे दायित्व नेला परे मते लागुछि निश्चित भाव रे यहा को गोटाए मिशन आकार रे जहाँ सरकार नहीं ताकू साकार करबा पई हमको पड़िबो आ सेथि पई निश्चित भाव रे यार प्रचार प्रसार करबा पई प्रति वर्ष नवेम्बर मास 10 तारीख को अर्थात आमे आजिर दिन को आज हूँ नवेम्बर 10 तारीख आजिर दिनक को मांडिया दिवस भावे आमे समस्ते पालन करुछंती एवं यहाकू निश्चित भाव रे आज समस्ते मने पकेवा सहित चाषी को आग्रह करने कथा एवं जदि मांडिया दिवसर महत्व को आम प्रतिपादन करवा लोकों पाखरे वार्ता टीए दे पारिबा ताहा निश्चित भाव रे आगामी दिन में जो एक आह्वान अच्छी आम पाई ये श्री अन्न को किभली भाव में आगामी दिन में व्यापक भाव में आम आम घरर जो आम खाऊवा थाड़ी को पहुँचे पारिबा ताले निश्चित भाव में साकार हो पारिबो एवं समस्त को मु आह्वान करी आगामी किछि दिन परे आमर माँ माने मार्गशीर मास प्रथम माणबसा गुरुवार मध्य पालन करिवे मोर समस्त को अनुरोध यही प्रथम गुरुवार रे समस्त माँ माने मांडिया को माँ लक्ष्मी पाखरे भोग लगी करिवे एवं परिवार समस्त को मांडिया प्रस्तुत व्यंजन निश्चित भाव में खुएबे ए कथाटी मु आज ये मंचरू समस्त मोर ओडिशार माँ भणी मान को मु कहवाई चाहे अनुरोध करुच्ची जे ये कार्य को जदि आप करदेवे ताले निश्चित भाव में यार प्रचार प्रसार सहित आगामी दिन में जो आमको आह्वान अच्छी ता निश्चित भाव में सफल हो पार मु आशा करी निश्चित भाव में भारत द्वारा प्रस्तावित ये संकल्प को आधार करी मिलित जातिसंघ यूनाइटेड नेशंस 2023 मसीहा को अंतर्जातीय पुष्टि शस्य वर्ष बा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भावे घोषणा करथिले श्री अन्न को प्रोत्साहन देवा दिगरे माननीय प्रधानमंत्री दूरदृष्टि और पदक्षेप परिवर्तित जलवायु को मुकाबला करिबारे सहायक हब एवं ताहार जो पदक्षेप नौछंदी आमे सफलता अर्जन करि परिबा ये कथा मु आज आशा करुछि ओडिशा होउछि कला संस्कृति परंपरा ऐतिह्य स्थापत्य और प्रत्नतात्विक स्थली होउछि एक उत्कर्ष केन्द्र राज्य रे 64 वर्गर जनजातीय 13 गोटी वर्गर आदिम जनजाति बा पीविटिस आज बास करुछंती से जनजाति संख्या मध्य आज 23% रु अधिक एवं आदिवासी संप्रदायर लोक मैंने विशेष करी जो मैंने विलुप्त प्राय शस्य और जंगलजात खाद्य उपर निर्भर करी जहाद्वारा से सुस्थ और निरामय जीवन यापन करी ये कथा जदि आज भी आपण मैंने जदि स्टडी करेंगे ताले जानीपारे जे जो मैंने आदिवासी जंगल पहाड़िया अंचल रोचंती से ये खाद्य खाइबा द्वारा
ସେମାନେ କେତେ ସୁଖୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ଏ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଏଠି ନୀତି ଆୟୋଗର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାରୀ ମହାଶୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 2ଟି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମିଲେଟ୍ସରେ ଆମେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆଜି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 2ଟି ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେରିଟେଜ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ଆମ ସଭିଙ୍କର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳିଟିଏ ହେଉ। ଆଜି ଇଏ ପୋଷକତ୍ୱର ଭରପୁର ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଖାଦ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚିରନ୍ତନ କୃଷି ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ କି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁହାଯାଉଛି, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ କରାଯାଇପାରିବ। I thank all the stakeholders in organizations who have supported our efforts in taking Sri Arna and forgotten foods to the messages. Our government will put all efforts to make Odisha a millet hub in India and become a center for excellence. I believe our efforts will contribute to the economic growth, well-being and health of the people of Odisha, which in turn help our state to be prosperous by 2036 and developed by 2047. Let us be part of this mission. Thank you all. Bande Utkal Janani. Jai Hind. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର सौम्या स्वामीनाथन मैडम जो प्रस्ताव अच्छी, सौम्या स्वामीनाथन मैडम ने जो प्रस्ताव हमको दिए हैं कि ओडिशा में एक इंटरनेशनल फार्मर स्कूल का एस्टैब्लिश करने के लिए निश्चित रूप से हमारा सरकार उसको विचार कर रहे हैं। अगला दिन में निश्चित रूप से उसको प्राधान्य देते हुए आपका वो प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिए हैं। अभी हमने विचार करते हुए निश्चित रूप से आगामी दिन में उसको हम निष्पत्ति ले सकते हैं। एवं शेषरे मु आज धन्यवाद दूची श्री अन्न विस्तृत खाद्य दिवस रे आमे आमर करा जो जिलापाल माने विशेष करिकी कोरापुट जिलार जिलापाल महाशय एवं रायगड़ार जिलापाल एवं सुंदरगढ़ जो माने श्री अन्न प्रोत्साहन पाई आज तांकु आज ये सम्मिलनी बा ये सरकार तांकु पुरस्कृत करिसंती एवं तांकु मु शुभेच्छा एवं धन्यवाद दूची आउ थरे एवं अन्य समस्त जिलार जिलापाल मानकु मध्य मु आह्वान दूची
ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। मान्यवर मुख्यमंत्री ଏହି ସାରା ଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। जोरदार କରତାଳି ହେଇଯାଉ। I would now request Shri Prem Chandra Chaudhary, Director of Agriculture and Food Production, to deliver the vote of thanks. धन्यवाद। आज विश्व स्तरीय श्री अन्न एवं फॉरगॉटन फूड्स उद्घाटन समारोह रे जोग देवा पाई मु मान्यवर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर को तांकर लीडरशिप देवा पाई ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा पाई तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। मेंबर नीति आयोग सर, चीफ सेक्रेटरी सर, चेयरपर्सन MSSRF, principal secretary sir, and all the WSHGs, scientists, policy makers, sectoral experts, market leaders, students, chefs, bloggers, anchoring agencies, my department officials, my colleagues, image officials, event management team and media representative सबों को बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपनकर सहयोग जोगु ये कार्यक्रम बहुत बहुत आराम रे सुचारू रूपे संपन्न है। धन्यवाद। We'll now request our esteemed dignitaries to proceed for the ribbon cutting at the stall area and also explore the stall set up there, showcasing the journey and future potential of our cherished forgotten foods. Thank you everyone present for making this a memorable beginning. आपण समस्तଙ୍କୁ भी बहुत बहुत धन्यवाद। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଏରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ।
ଗୋଟେ ରହିବ।